Welcome everybody to lecture number 13. What are we planning to do today? We will continue our discussion. First, so we saw that we've done everything related to binomial random variables, binomial distribution, uski mean, variance, uska distribution, PDF, CDF, how to look at the tables, everything we have done. So today what we will be doing is we will be doing some questions related to that, and then we will also jump on to the next distribution, which is basically the hypergeometric distribution. ठीक है, hypergeometric distribution क्या होता है? We will start talking about that. And उसके बाद we have one more distribution which is called the Poisson distribution. So उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ जो है आप अपने जो PYQs में questions आए हुए थे, we will start talking about them as well. ठीक है? Did you guys try any problems related to the binomial one? Were you able to solve them? Okay, perfect. All right. Chalo. ठीक है. So today we will be talking about first the hypergeometric distribution. So like we've understood the entire story. एक पूरी कहानी हमने समझी binomial random variable के related कि binomial experiment कब हम लोग बोलते हैं किसी चीज को. तो अगर हमारे पास n ट्रायल्स होते हैं, हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स्ड होती है, वो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो पहले से ही डिटर्मिन्ड है, सारे ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, वो सारे सिनेरियोज होने के बाद एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है, और उसमें जो है अगर हम लोग नंबर ऑफ सक्सेस या फेलियर निकाल रहे होते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. अब इसी तरीके से वी हैव अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन विच कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टोरी. सो वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी, उससे जो है हमारे पास एक नई तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी. ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपरज्योमेट्रिक. तो अब इसकी स्टोरी क्या है वो समझना जरूरी है. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. So hypergeometric distribution. So what are the assumptions which are related, which will bring out the hypergeometric distribution? Let's understand that. The first thing is, so the assumptions leading to the hypergeometric distribution are as follows. So what kind of assumptions that we have? First thing is कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, वट एवर एक्सपेरिमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, उसमें जो मेरी पॉपुलेशन है ना, द पॉपुलेशन और द सेट to be sampled, it consists of n individuals or objects or elements. So basically, whatever my population is, it will be a finite population. मेरे जो population होगी उसमें n individuals होंगे या n objects होंगे या फिर उसके अंदर n elements होंगे. ठीक है. So we will have a finite population. We'll have a finite population. ठीक है. This is the first thing that is needed for us to define a hypergeometric distribution. This is the first thing. Okay. What is the next thing? The second thing is each individual can be characterized as a success or as a failure. And there are capital M, success in my population, in the population.
सो बेसिकली यू नो वट एवर माई पॉपुलेशन इज, उसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम या तो एक सक्सेस बोल सकते हैं या तो एक फेलियर बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरी पूरी पॉपुलेशन में एम सक्सेस होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी कैपिटल एम नंबर ऑफ सक्सेस इन माई इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। सो मेरी पॉपुलेशन जो है उसमें कैपिटल एन एलिमेंट्स हैं, उसमें से कैपिटल एम सक्सेस है, तो बाकी जो फेलियर हो गए वो कितने हो गए, कैपिटल एन माइनस एम, राइट। तो मेरी एक पॉपुलेशन है जिसमें कैपिटल एन एलिमेंट्स हैं, उसमें से कैपिटल एम सक्सेस होंगे, ठीक है, और कैपिटल एन माइनस एम जो है वो मेरे फेलियर वाले केसेस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, कि अब आपको क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अ सैंपल ऑफ n individuals is selected without replacement in such a way that each subset of size n is equally likely to be chosen. तो हमें क्या करना है, सो बेसिकली व्हाट इज द सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ, मेरे पास कैपिटल एन, दिस इज माय एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें से कैपिटल एम इज माय नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब ये जो मेरी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से मुझे एन साइज का एक सैंपल पिक करना है, ठीक है। और अब ये जो स्मॉल एन है, अब इसमें से तो बहुत अलग अलग सैंपल्स पिक हो सकते हैं कैपिटल एन स्मॉल एन साइज के, राइट। अगर मान लो कैपिटल एन की वैल्यू 10 है और स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, तो 10 में से कोई भी दो वैल्यूज मैं पिक कर सकती हूँ। और इनका जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसका लिखने का मतलब क्या है कि यू आर पिकिंग द एलिमेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। आप पहला एलिमेंट पिक कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक यू आर कीपिंग इट बैक, यू हैव केप्ट इट एंड देन यू आर पिकिंग अनदर एलिमेंट। So you're picking elements, you're doing the sampling without replacement, और हर एक सैंपल जिसका साइज 2 है वो सारे सैंपल्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली है। तो जितने भी दो दो के पेयर बन सकते हैं वो सारी चीजें क्या है, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। इफ दैट इज द सिचुएशन अंडर दैट सिनेरियो, ठीक है, अंडर दैट सिनेरियो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाएं, और अगर इस सिनेरियो के बाद आप क्या कर रहे हो, द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज द फॉलोइंग, इज कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल, कि आपके सैंपल जो है ना उसमें कितनी सक्सेस आई। आपकी टोटल पॉपुलेशन में कैपिटल एम सक्सेस है, तो आपने ये जो सैंपल पिक किया ना इसमें से ये जो है कितनी सक्सेस आई, 0 सक्सेस आई, 1 सक्सेस आई, 2 सक्सेस आई, 3 आई, कितनी आई, वो जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। द ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जो तीन चीजें हमने अभी तक बात करी है वो क्या क्या है, कि कैपिटल एन पे डिपेंड करता है ये कि मेरी पॉपुलेशन साइज क्या है, ठीक है। ये कैपिटल एम पे भी डिपेंड करता है, कैपिटल एम क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस इन माय सैंपल, ठीक है। एंड ये स्मॉल एन पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है जब सैंपल पिक कर रहे हो तो उसका साइज क्या है, साइज ऑफ द सैंपल दैट यू पिक, दिस इज नंबर ऑफ सक्सेस इन माय पॉपुलेशन, ठीक है।
and small n is the size of the sample that you pick from the population. ठीक है, इज दैट ओके? अब ये तीनों चीजें समझ में आई कि मेरी एक पॉपुलेशन है जिसका सैंपल साइज कैपिटल एन है, जिस पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन है, उसमें हर हर एंटिटी को आप या तो सक्सेस या तो फेलियर के तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, और आपकी पूरी पॉपुलेशन में कैपिटल एम अमाउंट ऑफ सक्सेस है। और ये पॉपुलेशन में से आपको एक एन साइज का सैंपल पिक करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये जो एन साइज का सैंपल है, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं आपकी पॉपुलेशन में से एन साइज के, वो सारे इक्वली लाइकली हैं। तो ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई करते हुए अगर आप एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हो विच इज कि आपके सैंपल जो स्मॉल एन साइज था उसमें कितनी सक्सेस आई, तो वो जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मेरी पॉपुलेशन साइज, मेरी पॉपुलेशन में सक्सेस कितनी है, और मैंने जो सैंपल पिक किया उसका साइज कितना है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब जैसे कि अब इसका ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और चीजें समझ में आए। तो अब एक क्वेश्चन ही पिक कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ही पिक कर लेते हैं जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को इस्टेब्लिश कर रहा हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले तो हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या ये जो है एक हाइपर ज्योमेट्रिक सिचुएशन बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the probability that owner of the hotel bar does not allow the two minors to enter if he randomly checks the identity card of 5 students from among the 9 students of which only 5 are of eligible age? तो मेरे पास कितने लोग हैं टोटल? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स डू वी हैव हियर? 9. 9। ठीक है, अब ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं इसमें से अब इन्होंने क्या किया है कि ये एक होटल बार में गए, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 2 माइनर लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। माइनर मतलब मे बी दे आर नॉट ऑफ द एलिजिबल एज टू गो टू द होटल बार। ठीक है, अगर आपकी ड्रिंकिंग एज नहीं हुई है तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, he randomly checks the identity card of 5 students from among the 9 students, of which 5 are of eligible age. तो ये जो 9 बच्चे हैं उसमें से एलिजिबल एज के कितने लोग हैं? 5. एलिजिबल एज के लोग कितने हैं? 5। और नॉन एलिजिबल एज के लोग कितने हो गए? 4. 4 हो गए। ठीक है, तो आप ये देखो कि मेरी पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया? कैपिटल है 9। और मान लो कि एलिजिबल एज का होना एक सक्सेस है, नॉन एलिजिबल एज या फिर माइनर होना। मान लो एलिजिबल एज का होना सक्सेस है, ठीक है। ही डज नॉट अलाउ 2 माइनर्स टू एंटर। ठीक है, तो मान लो एलिजिबल एज का होना सक्सेस है और नॉन एलिजिबल एज का होना फेलियर है। तो मेरी पूरी पॉपुलेशन में सक्सेस कितनी है? 5. 5 इज दी कैपिटल एम वैल्यू 5, कि मेरे 5 लोग जो हैं वो सक्सेस है, मतलब वो एलिजिबल एज के हैं। ठीक है, और ये जो इंसान है, ये जो होटल ओनर है, उसने रैंडमली कितने लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए? 5. 5 स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या कि ये जो 9 बच्चे थे उसमें से कोई भी 5 बच्चे पकड़ लिए और उनके आईडी कार्ड चेक कर लिया। आईडी कार्ड चेक करते ही एज पता चल गई कि ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं है, राइट। तो इन्होंने पॉपुलेशन जो था जिसका साइज 9 था उसमें से कितने साइज का सैंपल पिक किया अपना रैंडम चेकिंग करने के लिए?
5 का, 5 राइट। तो मेरी जो स्मॉल n वैल्यू है वो कितनी हो गई? 5। अब जब ये देखो, अब ये जो इंसान है, अगर इन्होंने रैंडमली आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया है, तो हर कोई भी 5-5 के पेयर्स जो हो सकते थे, कोई भी 5-5 बच्चे जो आ सकते थे, वो एक इक्वली लाइकली सिनेरियो है। कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है ना, कुछ अलग 5 बच्चे हैं कि वही सैंपल पिक होगा। एवरी एनी 5 सैंपल स्टूडेंट्स दैट यू कैन पिक। तो ये 9 में से आप जितने भी 5-5 बच्चों के सैंपल बना सकते हो, जिसमें हर सैंपल अलग होगा, तो वो हर सैंपल आने का चांस इक्वली लाइकली है इस सिनेरियो में। यस मैम। क्योंकि कोई भी 5 बच्चे पिक हो सकते हैं ना, कोई भी स्पेशल इंसान नहीं है, या कोई अलग से आइडेंटिटी कार्ड लगा के नहीं है कि ओके इसको चूज करो इसको मत करो, राइट। तो इसका मतलब मेरे पॉपुलेशन साइज है वो भी पता चल गया, मेरी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सक्सेस कितना है वो भी पता चल गया, मैंने उसमें से क्या सैंपल साइज पिक किया 5 वो भी मेरे को पता चल गया, ठीक है। वो जो सबसेट होना है मेरी पॉपुलेशन में से, वो सारे सबसेट इक्वली लाइकली भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, ठीक है, मेरा रैंडम वेरिएबल x विच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of eligible age, because मेरा number of students who are success, right? Random variable क्या होगा? Number of success in my sample. So number of students of eligible age in sample of 5. This will be my hypergeometric distribution. ठीक है? Is that okay? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसमें इन्होंने हमसे पूछा क्या है, वो कैसे निकालना है वो तो हम देखेंगे पहले, लेकिन ये बताओ कि हमसे इन्होंने पूछ क्या लिया। What have they asked us? कि what is the probability that the owner of the hotel bar does not allow 2 minors to enter? तो 5 लोगों में से वो 2 माइनर्स को एंटर नहीं करने दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैम सैंपल इस तरीके से मतलब आना चाहिए कि 3 मेजर और 2 माइनर्स हो, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। 3 लोग एलिजिबल एज के होने चाहिए और 2 लोग माइनर होंगे, तभी वो जो 2 माइनर्स थे वो नहीं एंट्री ले पाएंगे, राइट, क्योंकि उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक हो गया, राइट। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वैल्यू इक्वल टू व्हाट? Number of students of eligible age in 5. How many should be of eligible age? 5 5। पांचों एलिजिबल एज के होने चाहिए। तो और पांचों, 3। है ना, पांचों अगर एलिजिबल एज वाले लोग आ गए तो सारे माइनर चले जाएंगे अंदर, राइट, क्योंकि उनका तो आइडेंटिटी कार्ड ही चेक नहीं हुआ। तो एक्स की, 3 है ना, तो 3 लोग, मेरी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 3, मतलब मेरे एलिजिबल एज के लोग मेरी जो सैंपल में आने चाहिए वो 3 आने चाहिए आउट ऑफ 5, ताकि जो 2 बचे वो माइनर हो, राइट, और उनको एंट्री ना मिले। यस और नो? यस मैम। तो आपको सीधा सीधा क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वैल्यू इज यू नो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वैल्यू इज 3, राइट। तो अच्छा, अब जरा बताओ, ऑल्दो हमने पैटर्न नहीं समझा है, बट फिर भी इस क्वेश्चन से ही आप पैटर्न समझ सकते हो। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि 3 एलिजिबल एज के लोग आ जाएंगे आपके 5 के सैंपल में? तो आप क्या करोगे? सिंपली आप अपने फेवरेबल केसेस देखो। आपका फेवरेबल केस क्या है कि आपको वो सैंपल्स ढूंढने हैं जहां पे 3 लोग एलिजिबल एज के हों और बाकी 2 लोग नॉन एलिजिबल एज के हों, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C3 इंटू 4C2। तो क्या, वेरी नाइस। तो बेसिकली 5 लोग जो एलिजिबल एज के हैं उसमें से कोई भी 3 आ जाए मेरे पास, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? मेरे जो 4 लोग हैं जो 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 नॉन एलिजिबल एज के हैं, उसमें से कोई भी 2 लोग आ जाएं,
ये मेरे फेवरेबल केसेस हो गए, राइट। और इसको मैं yes, डिवाइड कैसे कर सकती हूँ कि भाई 9 में से कोई भी 5 लोग आ जाते हैं, राइट। 9C5, यस और नो, yes, है ना। तो ये इस तरीके से मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलो, तो ये इस चीज में कोई क्लियर डाउट है भारत, इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है ना। चलो, तो अब मेरे को अब एक एक करके अब ये बताओ कि ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है मेरा, ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 5 लोग हैं इसमें नंबर ऑफ एलिजिबल एज का कोई भी बच्चा ना हो? एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो मेरे को बताओ। 0 1 2 3। 0 होने का मतलब क्या होगा कि एक भी बच्चा एलिजिबल एज का नहीं है, राइट। यस मैम। एक भी बच्चा अगर एलिजिबल एज का नहीं है तो मतलब सारे बच्चे नॉन एलिजिबल एज के हैं, मतलब पांचों बच्चे नॉन एलिजिबल एज के हैं। क्या मेरे पास 5 बच्चे हैं नॉन एलिजिबल एज के? नो मैम। नहीं है ना। तो कम से कम एक तो एलिजिबल बच्चा होना ही चाहिए, राइट। कि पहले चारों नॉन एलिजिबल यस आ गए, लेकिन एक बच्चा तो ऐसा होगा जो एलिजिबल एज का होगा, यस और नो। यस तो मेरी एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती यहाँ पे इस केस में, यस राइट। तो मेरी एक्स की वैल्यू पॉसिबल यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है, राइट। बट एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट। इज दैट ओके? और मैम एक्स की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? मतलब मैम क्वेश्चन में ये पूछा है कि एलिजिबल 3 होने चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब मैं आपसे आगे पूछ रही हूँ ओके। कि ये सिचुएशन है कि अगर मेरा रैंडम वेरिएबल ये है कि नंबर ऑफ एलिजिबल एज के स्टूडेंट्स इन माय सैंपल, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन हैज एंडेड, वी आर डिस्कसिंग इन जनरल द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। ओके। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, राइट। अच्छा जी, यस तो अब ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैसे निकालोगे आप। वन का मतलब क्या है, एक बच्चा एलिजिबल एज का और बाकी सारे लोग नॉन एलिजिबल एज के, वो कैसे निकालोगे? और मैम 5C1 हम्म और मल्टीप्लाई बाय 4C4 अपॉन 9C5। वेरी नाइस। एक्स इक्वल्स टू 2 कैसे निकालोगे? और मैम 5C2 हम्म और 4C3 हम्म और 9C5 अपॉन। वेरी यस नाइस। और 3 तो हमने निकाल ही लिया था, यस वो क्या था, 5C3 4C2 डिवाइडेड बाय 9C5, राइट। और एक्स की वैल्यू 4, ये कैसे आ जाएगा, 5C4 टाइम्स 4C1 डिवाइडेड बाय 9C5, यस एंड 5 क्या आ जाएगा, 5C5 into 4C0 upon 9C5। 5C5 टाइम्स 4C0 0। डिवाइडेड बाय 9C5, राइट। ठीक है, यस कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है?
डू यू सी एनी पैटर्न? ये 9 क्या है? व्हाट इज दिस 9? माय टोटल सैंपल पॉपुलेशन साइज, राइट? Yes. मेरी टोटल पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन। सी 5 क्या है? व्हाट इज 5? नंबर ऑफ व्हाट वाज 5? Small and स्मॉल एन भी था, लेकिन 9 में से कोई भी 5 लोग आ जाएं, ठीक है? तो ये क्या था मेरा सैंपल साइज? तो स्मॉल एन, ठीक है। और ये क्या था? व्हाट इज दिस 5? ये जो 5 लोग हम पिक कर रहे थे वो कौन से लोग थे? capital M. कैपिटल एम। मेरी नंबर ऑफ सक्सेस, तो मेरी नंबर ऑफ सक्सेस में से मैंने क्या किया? एम सी, ये वैल्यू कहां से आई? ये मेरी एक्स की वैल्यू थी, 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 राइट? तो इसको मैं एम सी एक्स लिख दूं? Yes, ma'am. ठीक है। और ये क्या था? व्हाट वाज दिस? व्हाट वाज दिस फॉर? ये मेरे फेलियर वाले लोग थे, नॉन एलिजिबल लोग, है ना? Yes, ma'am. मेरे फेलियर वाले लोग कितने थे? मेरे सक्सेस वाले कैपिटल एम, टोटल पॉपुलेशन में कैपिटल एन, तो फेलियर वाले कितने लोग हो गए? Capital N minus capital M. वेरी नाइस, कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन। और इसमें से आपको कितने लोग चुनने हैं? एक्स तो आपने एलिजिबल चूज कर लिए, तो बाकी कितने नॉन एलिजिबल चूज किए? आपका सैंपल, Capital M minus X. हाँ हाँ, आपका सैंपल साइज 5 था, राइट? Small n minus X. वेरी नाइस, स्मॉल एन माइनस एक्स, राइट? अब ये फॉर्मूला अगर आप कहीं पे भी फिट करके देखोगे इन सब में से, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? Yes. है ना? तो ये देखो, यहाँ पे मेरी ये m वैल्यू कितनी थी? 5। ये वैल्यू कितनी थी? 4। ये वैल्यू कितनी थी? 9। और ये वैल्यू कितनी थी? 5। तो हर जगह आपको यही नंबर मिल रहा है, देखो, 5495, 5495, 5495, 5495, 5495, राइट? और ये नंबर्स बस बदलते जा रहे हैं। और ये नंबर किस तरीके से बदल रहे हैं कि इनका टोटल सम क्या होना चाहिए? n 1423324150, राइट? Yes, ma'am. तो ये तो जनरल फॉर्मूला बन गया, राइट? तो जनरल फॉर्मूला जो आपका हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में होता है वो क्या होता है? तो अब अगर जनरल फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो अगर आपको ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स निकालनी है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? जैसे बाइनोमियल के केस में ऐसे लिखते थे ना, एक्स एन कॉमा पी। इस केस में कैसे लिख देते हैं इसको? हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? व्हाट ऑल थिंग्स? Capital N, capital M, and small n. वेरी नाइस। तो ये तीनों चीजें हमने ऐसे लिख दी, ठीक है। तो जो जो चीजों पे ये डिपेंड करता है वो यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास टास्क है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, ठीक है। तो ओके, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे निकालेंगे? इसका तो हमने जनरल फॉर्मूला क्रिएट कर ही दिया है, पैटर्न हम समझ गए हैं, ठीक है। तो पीएमएफ अगर आपको निकालना होगा, पीएमएफ ऑफ अ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट if x is the number of success
in a completely a random sample of size n, which is drawn from a population consisting of capital M success and capital N minus capital M failures. ठीक है, तो मेरे पास अगर एक पॉपुलेशन है जिसमें x क्या है, मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट यू आर गेटिंग इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, और वो जो मेरी पॉपुलेशन है उसमें m सक्सेस है और n माइनस m फेलियर्स हैं. ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of x, which is called the hypergeometric distribution, it is given by what? कि भाई अगर आपको probability of x equals to small x निकालनी हो, which is also this, तो वो क्या होगी? आपको x नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए अपने सैंपल में, तो आपकी टोटल सक्सेस में से आप कितनी सक्सेस वैल्यूज चाह रहे हो x, इसको आप mcx लिख दोगे, और आपके जो फेलियर वैल्यूज हैं n माइनस एम, उसमें से आपको कितनी फेलियर चाहिए n माइनस एक्स, राइट, और आपको अपनी टोटल पॉपुलेशन साइज में से कितने सैंपल वैल्यूज चाहिए n. ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो सिंबल होता है, ये भी चूज का ही होता है, तो चाहे mcx लिख लो या mx और ऐसे लिख लो, बोथ आर एक्चुअली द सेम थिंग, राइट? इज दैट ओके? यस मैम. है ना? तो हमारा फॉर्मूला जो है इन जनरल क्या हो गया, ये कि सक्सेस में से x सक्सेस चाहिए, फेलियर में से n माइनस एक्स फेलियर चाहिए, और टोटल पॉपुलेशन साइज में से n साइज का सैंपल चाहिए. इज दैट ऑल राइट? मैम ये m के नीचे फिर x कैसे आया, अगर उसमें से वो चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं. कौन सा क्या? m में से x क्यों चाहिए? नो मैम, m में से x चाहिए तो m ऊपर और x नीचे, ये कैसे लिखा है? ये यस मैम. ये सिंबल है इसका. ओके मैम. x is equivalent to writing this. ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. This also you can write. Okay, all right. अच्छा, अब जैसे हमने पिछले केस में देखा कि मेरे पास टोटल जरूरी नहीं है कि मेरी x की वैल्यू 0 से ही शुरू हो, राइट? मेरी x की वैल्यू हो सकता है 0 ना हो, राइट? तो मेरे को एक चीज ये देखनी पड़ेगी, मेरे ये जो x वैल्यूज हैं ये किस किस पॉसिबल वैल्यूज में आ सकती हैं. ठीक है, so this formula is applicable for what values? So this is applicable for x, which is an integer. It is satisfying what? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि अगर मान लो आपका सैंपल साइज 10 था, ठीक है, मतलब जो स्मॉल n वैल्यू है वो 10 है. ठीक है, मतलब आपने अपनी पॉपुलेशन में से जो सैंपल साइज पिक किया वो 10 है, और आपकी पूरी पॉपुलेशन में m की वैल्यू ही 5 है, राइट? तो क्या आपकी x वैल्यू कभी भी 5 से ऊपर जा सकती है? x क्या था? मेरे नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं, राइट?
तो मेरी सक्सेस की नंबर 5 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती। यस और नो? क्योंकि मेरी पूरी पॉपुलेशन में ही 5 से ज्यादा तो सक्सेस है ही नहीं, तो मैं छठी सक्सेस लाऊंगी कहां से, राइट? तो मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहां से आएगी, कि मेरी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि इट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n कॉमा m। तो मेरा ये जो x वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यहां से डिटरमाइन हो जाएगी कि अगर मेरा सैंपल साइज अगर मेरा ये जो n है, जो मेरा सैंपल साइज है, ये मेरी नंबर ऑफ सक्सेस से बड़ा है, तो मेरी एक्स वैल्यू मैक्सिमम मेरी टोटल नंबर ऑफ सक्सेस के बराबर होगी। और मान लो ये छोटा है, तो हाँ ठीक है, तो n तक मेरी वैल्यू आ सकती है। यस और नो? मिनिमम का मतलब होता है इन दोनों में से छोटा कौन है, राइट? ओ मैम, ये वाला समझ नहीं आया, आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो आपकी पूरी पॉपुलेशन में जो सक्सेस है वो 5 ही है, ठीक है? और आपका यस। सैंपल साइज है 10। मतलब आपकी जो भी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन साइज मान लो 20 था, 20 में से आपको 10 साइज का सैंपल पिक करना है, ठीक है? और हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, कि मेरे सैंपल में कितनी सक्सेस आ सकती है। तो आपके सैंपल में मैक्सिमम कितनी सक्सेस आ सकती है? मैम 5। 5 के ऊपर आ सकती है क्या? नो मैम। नहीं। तो ये कैसे पता चला कि जो, अगर मेरी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये जो वैल्यू है वो बता देगी कि भाई आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, राइट? यस मैम। मिनिमम का मतलब होता है कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो ओके मैम, 10 छोटे से। ओके, समझ। है ना? और मान लो अगर ये ऐसे होता कि ये 5 होती और ये 10 होती, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? आपने 5 का साइज का सैंपल पिक किया और आपके टोटल पॉपुलेशन में 10 सक्सेस हैं, तो 5 सक्सेस तो आ ही सकती है ना? यस मैम। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 एंड 10, अगेन 5, राइट? तो आपका सैंपल साइज और नंबर ऑफ सक्सेस, इनमें से जो नंबर छोटा होता है वो आपकी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट? इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ये क्लियर हो गया कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है? अच्छा जी, ओके। अब ये देखो, अब मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचते हैं, ठीक है? अब जैसे पुराने वाला केस था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं आई, राइट? एक्स की वैल्यू कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं आई। एक्स की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब था, कि मेरी सक्सेस जो है वो कितनी हो गई, 5। सॉरी, मेरे नॉन एलिजिबल लोग कितने हो गए, 5। लेकिन मेरे तो नॉन एलिजिबल लोग 5 थे ही नहीं। मेरे तो नॉन एलिजिबल लोग कितने थे, 4, राइट? यस मैम। तो अगर मेरे नॉन एलिजिबल लोग 4 हैं, तो मेरी जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो एक तो आएगी ही आएगी, है ना? यस। तो अब आप ये देखा करो, आपको ये क्वांटिटी निकालनी है। अगर आप देखो, ये जो है ना, ये कैपिटल N माइनस कैपिटल M, ये क्या देता है आपको? व्हाट डज इट गिव यू? फेलियर्स, फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, यस मैम। है ना? पॉपुलेशन। अच्छा, अगर मेरा सैंपल साइज इस नंबर से बड़ा हो गया, अगर मेरा सैंपल साइज मेरी फेलियर के नंबर से बड़ा हो गया, जैसे पिछले केस में था,
मेरा सैंपल साइज था 5, मेरी फेलियर्स कितनी थी 4, राइट? तो मेरी एक्स की वैल्यू शुरू कहां से हो रही थी? एन माइनस कैपिटल एन माइनस एम, इतनी मेरी सक्सेस होनी ही पड़ेगी। यस मैम। ये 5 था, ये 4 था, इनका डिफरेंस क्या था? 1, तो एक्स की वैल्यू 1 तो होगी ही होगी, राइट? इज दैट ओके? यस मैम। है ना? और अगर ये इससे कम होता, अगर ये इससे कम होता, अगर ये इससे कम होता, कि अगर मेरे नंबर ऑफ फेलियर्स जो हैं वो ज्यादा होते मेरे सैंपल साइज से, तो मेरे पास सारे फेलियर्स आ सकते थे, यस मैम। है ना? सारे फेलियर आ जाते, सारे नॉन एलिजिबल बच्चे आ सकते थे मेरे पास। तो मेरी एक्स की वैल्यू शुरू कहां से होती? 0 से, यस मैम। है ना? तो इस चीज को, इस रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इट इज द मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर n माइनस कैपिटल N। क्योंकि जब भी ये लेस देन है तो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव आएगा, यस। और नेगेटिव और 0 में बड़ा कौन? 0 0। तो मेरी वैल्यू 0 से शुरू हो जाएगी, राइट? जो कि वैलिड है। यस मैम। और जब भी मान लो ये बड़ा हो गया तो मेरी वैल्यू कहां से शुरू होनी चाहिए? इस डिफरेंस से, यस मैम। है ना? तो 0, और फिर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये कोई पॉजिटिव नंबर, तो मैक्सिमम ऑफ 0 एंड पॉजिटिव इज दैट पॉजिटिव नंबर। तो मेरी एक्स वैल्यू कहां से शुरू हो जाएगी? इसमें से। यस। तो ये भी मेरी चीजों को वैलिडेट कर रहा है। इज दैट ओके? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एक्स वैल्यू है वो इन नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा, जब भी एक्स की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है तब जाके वो एप्लीकेबल होता है। फाइन, क्लियर हो गया? यस। यस। ठीक है ना? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख लिया करो, ठीक है? इज दैट ओके? यस। चलो, वेरी नाइस। तो हम पीडीएफ समझ गए, पीएमएफ समझ गए, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हमें समझ में आ गया कि भाई आपकी सक्सेस में से एक्स चूज कर लो, सक्सेस में से एक्स चूज कर लो, फेलियर में से n माइनस एक्स चूज कर लो, और कैपिटल N में से n चूज कर लो, राइट? यस। फाइन। अब जो है, अब हमें क्या करना है? अब हमने इसकी पीडीएफ समझ ली, पीएमएफ समझ ली, तो अब हमारा अगला टास्क क्या है? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, इसकी वेरिएंस निकालना। तो हम इसके लिए प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली समझ लेंगे कि इसका वेरिएंस और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है? तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है? हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है उसका मीन और वेरिएंस क्या होता है, ठीक है? तो मीन और वेरिएंस, मैम इसका सीडीएफ नहीं होता? सीडीएफ भी होता है, उसमें भी आप सिंपली क्या करोगे, ये वैल्यूज आप ऐड करते जाओगे। बट इसमें ना उससे वैरायटी बहुत है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी, इसलिए इसकी कोई टेबल्स भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसमें तीन तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई, राइट? आपका नंबर ऑफ सक्सेस, आपका पॉपुलेशन साइज, आपका सैंपल साइज, फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं एक्स और वाई वैल्यूज की, आई मीन एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो इसका यस मैम। सीडीएफ निकालना होगा तो आप सेम लॉजिक लगाओगे, जैसे मान लो एक्स पी सीडीएफ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1,
तो इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है, लेस देन इक्वल टू 2 तो 2 और 1। लॉजिक सेम है बट हम अलग से कोई फॉर्मूला नहीं देखते हैं उसका, ठीक है। Yes. ऑल राइट, तो अब क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। अब मीन और वेरिएंस क्या है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका पीडीएफ इस तरीके का होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, n, m एंड n, ठीक है। तो इसकी जो मीन वैल्यू होती है वो क्या होती है, n टाइम्स m डिवाइडेड बाय n। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, और इसकी वेरिएंस वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1 टाइम्स n टाइम्स m बाय n टाइम्स 1 माइनस m बाय n, ठीक है। ये इसकी वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाट इज m बाय n, m क्या है कि मेरी पॉपुलेशन में क्या है, सक्सेस कितनी है डिवाइडेड बाय माय टोटल पॉपुलेशन साइज, राइट। तो अगर मान लो मैं m बाय n एक्चुअली क्या हो गया मेरा, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ केसेस ऑफ सक्सेस इतने हैं आउट ऑफ टोटल, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग क्या बोल देते हैं, m बाय n, Yes. है ना। तो मान लो अगर आप m बाय n को, इफ वी रिप्लेस m by n by p, what do we get, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, n टाइम्स p, राइट। और मेरी वेरिएंस ऑफ x क्या हो गई, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1, n टाइम्स p टाइम्स 1 माइनस p, राइट। इज दैट ओके। Yes, ma'am. तो अब आप ये देखो कि मान लो p इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मेरा जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, अगर उसमें नंबर ऑफ सैंपल साइज n है और p है फॉर बाइनोमियल, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की क्या हो जाती है, NP. n टाइम्स p, और उसकी वेरिएंस वैल्यू क्या हो जाती है, np NP. 1 माइनस p। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये np और ये np सेम है, और यहाँ पे क्या है npq, यहाँ पे भी क्या है npq, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, राइट। यस और नो। Yes. तो हम क्या बोलते हैं, वी से दैट कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ बाइनोमियल and a hypergeometric random variables are equal, they are equal while the variance of the two random variables differ by a factor of n minus small n divided by n minus m। और ये जो फैक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it a finite population correction factor, right. This is a finite population correction factor. Is that okay? ठीक है। Yes, ma'am. इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, क्यों, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में
आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है, कि आप कितने सैंपल साइज पिक कर सकते हो वो फाइनाइट होता है, राइट। क्या बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में ये फाइनाइट होता है? जैसे कल वो एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 2 रेड बॉल है, बाकी व्हाइट बॉल है। मैं चाहूं तो ये पूरा प्रोसेस 10,000 बार कर सकती हूँ। एक बार उठाया, चेक किया, रख दिया, एक बार उठाया, चेक किया, रख दिया, ऐसे करके मैं ये 10,000 बार कर सकती थी। और मैं बोल देती थी मेरा सैंपल साइज जो है वो 10,000 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 10,000, माई नंबर ऑफ ट्रायल कुड हैव बीन 10,000 देयर, राइट। यस मैम। ठीक है, वो तो 1,00,000 करोड़ भी हो सकता था, वो 5 भी हो सकता था, वो 2 भी हो सकता था। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपकी अगर एक पॉपुलेशन जिसका साइज n है उसमें से ही सिर्फ सैंपल उठाना है, तो मैक्सिमम सैंपल साइज क्या हो सकता है? मेरी पॉपुलेशन का साइज। यस, है ना। तो वो चीज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो मेन चीज डिफरेंस है, इसलिए ये वेरिएंस में भी इनका फर्क आ रहा है। तो ये जो कैपिटल N-N/(1) है, इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। इज दैट ओके? सो फार सो गुड? यस। फाइन। मैम ये जो पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है इसे याद रखना है या इसके पीछे कुछ वो है कि ऐसे बना? वो तो पूरा डेरिवेशन करके आएगा, बट राइट नाउ यू शुड रिमेम्बर इट, आई वुड से। ओ, ओके। ठीक है, तो इसको आप याद ही रखो। ऑल राइट, ठीक है जी। अब मान लो सपोज, लेट आपकी जो पॉपुलेशन साइज है, लेट द पॉपुलेशन साइज बी कैपिटल एन, ये कैपिटल एन है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन सक्सेस m जो है इट गेट्स लार्जर, सो दैट ये जो आपका रेशियो है ना m/n, ये अप्रोच करता है p को। p इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मान लो ये नंबर p को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, देन वी आर सेइंग, देन वी से दैट ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, this approaches the binomial distribution. Okay, this approaches your binomial distribution. So for n by capital N small, मतलब कि अगर आपका जो सैंपल साइज है वो आपकी पॉपुलेशन साइज से के रिलेशन में बहुत छोटा है, ठीक है, इफ n by capital N is small such that p is not too near to 0 or 1। तो बेसिकली ये हमें एक ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस अबाउट अ सिचुएशन अंडर विच ये जो मेरा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मेरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच करेगा। तो इन्होंने बोला है कि जब आपका पॉपुलेशन साइज n होता है और आपके नंबर ऑफ सक्सेस वो लार्ज हो रहे हैं, सच दैट ये जो m/n है ये p को अप्रोच कर रहा है, जो कि मेरी बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी थी। उस केस में क्या होता है, ये जो बाइनोमियल है, जो हाइपरज्योमेट्रिक है, ये बाइनोमियल को अप्रोच करने लगता है। मतलब इन दोनों में जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, तो वो बिल्कुल आसपास ही आएंगी। तो जब भी आपका सैंपल साइज आपकी पॉपुलेशन साइज से स्मॉल होता है, तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड है?
whenever your sample size is very small relative to your population size, and आपकी जो p वैल्यू है, आपकी जो p वैल्यू है, जो m/n या जो p वैल्यू है, जो भी हमारी बाइनोमियल में p वैल्यू आ रही है, वो या तो 0 या तो 1, इसके बहुत नजदीक ना हो, वो समवेयर मिडिल रेंज में हो. तो what are we trying to say? This distribution will approximate this distribution when this is happening, when your m/n is approaching p and your p value is not very close to 0 or 1. अगर ऐसे हालात में हो आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय आप डायरेक्टली बाइनोमियल की वैल्यूज भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये सब ना सिमुलेशन करके आता है, मतलब आप अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करके देखते हो कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करके, तो आपको समझ में आता है कि ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से m/n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल पास पास आ रहे हैं. तो इसकी कोई एक प्रोबेबिलिटी आएगी, मान लो 0.25, इसकी मान लो 0.2458. तो ये बहुत नजदीक आने लग जाते हैं अंडर ऑल दीज सिचुएशंस. Whenever your m/n value is approaching p, p is not very close to 0 or 1, and this is very small. ये सब सिनेरियो के अंदर मेरा जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लगता है. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली, दिस इज द रैशनल फॉर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन रूल. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन रूल. ठीक है, ये हमारा रीजनिंग है. जो हमने ये नहीं बताया था कि अगर आपका सैंपल साइज जो है वो आपकी पॉपुलेशन साइज से 5% या एटमोस्ट 5% हो, और आप इवन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर चीजें कर रहे हो, तो भी वो बाइनोमियल के अप्रोक्सीमेट होगा. तो वो चीज करने का रैशनल ये है. ठीक है, कि जब आपकी ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है n, n बहुत छोटा है इन रिलेशन टू n, तो ये जो रेशियो है दिस विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 1. तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली टू दैट वन. और आपका बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे. ठीक है, इज दैट ओके? मैम कैपिटल एस सक्सेस को डिनोट कर रहा है. हाँ जी, हाँ जी, सक्सेस, यस. ओके. ठीक है, ऑल गुड. यस. ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? फाइन, क्लियर हो गया. चलो जी, ओके. सो फाइन, ओके. ठीक है जी, चलो तो फिर एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ 10 minutes ब्रेक नाउ, एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल स्टार्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बाइनोमियल एंड द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक दोनों के हम लोग थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, चले. इसमें कोई डाउट है? एनीथिंग? ऑल गुड? यस. चलो, ओके. सो लेट्स मीट एट 7:31 एंड लेट्स डू सम डाउट्स. ओके, क्वेश्चंस, यस. Okay guys, I'll see you in 10 minutes. Thank you. Start doing the problems now. ठीक है, चलो, okay. So
चलो जी, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो दीज आर योर PYQs, नॉट योर PYQs पर से, बट जो भी ये कोर्स होता था उसमें जो आपके सीनियर्स, सुपर सीनियर्स और उनके जो पेपर्स आते थे जिसमें ये चैप्टर्स कवर होते थे उसके क्वेश्चंस है ये। ठीक है, चलो तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज द थर्ड वन। लेट्स ट्राई डूइंग दीज 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्वेश्चन पूछा है? What is the probability of getting a 9 exactly once in 3 throws with a pair of fair dice? तो क्या क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या है उस चीज की कि आपको एक एग्जैक्टली 9 मिलेगा, you get a 9 exactly once in 3 throws with a pair of fair dice. Is it 9 or something else? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 एग्जैक्टली वंस? तो आपको 9 जो है एक ही बार आएगा एग्जैक्टली वंस इन 3 थ्रोज, 3 बार आप थ्रो कर रहे हो with a pair of fair dice. You are throwing a pair of fair dice. Pair of fair die. पेयर ऑफ फेयर डाई मतलब आप 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हो, उससे क्या होगा? एक नंबर, एक डाई में कुछ आएगा, दूसरे डाई में कुछ आएगा, तो उनका जो सम है वो 9 आए। तो बेसिकली जब आप 2 पेयर ऑफ डाई, मतलब एक बार थ्रो किया दैट इज 1 थ्रो, 2 डाइस को एक बार थ्रो किया दैट इज 1 थ्रो, 2 वही डाई को दोबारा थ्रो किया दैट इज सेकेंड थ्रो, 2 डाई को तीसरी बार थ्रो किया दैट इज योर थर्ड थ्रो। तो इन ये जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो क्या है कि 3 बार आपने एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया, उसमें एक ही बार एग्जैक्टली वंस 9 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो फिर ये कैसे करेंगे? हाउ आर वी सपोज टू डू दिस? क्या करना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस? तो मान लो n जो है वो क्या है? 3, राइट? योर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 3। व्हाट इज योर वन ट्रायल? थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाई। ठीक है, गेटिंग अ 9 उसको सक्सेस बोल दो, गेटिंग एनीथिंग एल्स उसको फेलियर बोल सकते हो। यस और नो? Failure is getting anything else. ठीक है जी, ओके। प्रोबेबिलिटी और एक बार थ्रो किया, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 है, दूसरी बार थ्रो करोगे तब भी वही चीज होगी, तीसरी बार थ्रो करोगे तब भी वही चीज होगी। क्या सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं? यस मैम। सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। क्या सारे ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है? Probability of success is getting a 9. So what is the probability that you get a 9? जब आप एक पेयर ऑफ डाई थ्रो करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? क्या तो 1 1 आ जाए, राइट, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, ऐसे आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यस और नो? और मैम इसमें सम नाइन निकालना है। क्या कह रहे हो? मैम गेटिंग अ 9 मींस उसका सम कम 9 9 होना है। चाहिए। यस यस, बिकॉज ओके। बिकॉज दो डाई जब आप रोल कर रहे हो तो जो 2 में नंबर आ रहा है उसको आप ऐड कर रहे हो, बिकॉज विदाउट दैट तो 9 तो आ नहीं सकता, राइट? 6 ही साइड्स होते हैं एक डाइस के, है ना? यस। तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? कब कब 9 आता है? सो देर आर हाउ मेनी ऑप्शंस? 36 ऑप्शंस। 36 ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से कितने पॉसिबल ऑप्शंस में 9 आता है? You get a 9 when you have what? 6 and 3.
You get a 9 when you have 5 or 4. You get a 9 when you have 4 and 5, right? And you get a 9 when you have 3 and 6. Is there any other possibility? No, ma'am. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो आपके फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4. ठीक है. Yes. और आपके टोटल केसेस कितने हो गए? 36. तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 1/9. तो कैन यू प्लीज फाइंड इट आउट? व्हाट इज दिस? आई विल जस्ट बी बैक इन 10 seconds. Can you try to proceed with this question? Yes. So where have we reached now? My probability of success is 1/9, right? 1 minus p is 8/9. तो मेरे को एक्चुअली निकालना क्या है? That I get exactly once 9. I should get 9 exactly once. So मेरा जो probability है वो मुझे क्या निकालना है? Probability that my x value is equals to 1, right? Yes, ma'am. तो ये क्या होगा? What is that going to be? Tell me. 3C1, 1/9 raised to the power 1, 8/9 raised to the power 2. 1/9 raised to the power 1 and 8/9 raised to the power 2. Very nice. Are we all good with this? Are we clear how this has happened? क्योंकि ये मेरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था. बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है? NCX p raised to the power x 1 minus p raised to the power n minus x, right? Is that okay? मैम ये 8/9 2 times कैसे आया? n क्या है? 3. n minus 1 Yes. minus 1 Okay. है ना? Yes. ठीक है. Very nice. Are we all clear with this? How did this happen? Yes. ठीक है. तो ये बाइनोमियल का यूज करके आपको सारी चीजें करनी थी. ठीक है. मैम इसमें 3 थ्रो पेयर डाइस, इसका क्या मतलब है कि मैम 3 बार करेंगे तो पेयर तो मैम 2 बार में बनता है, 2 बार अगर उछालते हैं तो उसको. आपके पास 2 डाइस हैं. मान लो ये एक डाइस है. ये डाइस नहीं है बट एक और डाई है. मान लो 2 डाइस हैं. एक बार थ्रो किया, दैट इज 1 थ्रो. 2 ही डाइस को दोबारा थ्रो किया. आप कौन सा गेम खेलते हो जिसमें 2 बार डाई रोल करना पड़ता है? लूडो में 2 बार डाई रोल करना होता है, राइट? Yes. नहीं, 1 होता है ना उसमें, कि 2 होता है? लूडो में तो 1 ही होता है. Yes, मैम लूडो में 1. कौन सा गेम होता है जिसमें 2 बार डाई, दो डाई एक साथ रोल करते हो? कोई ऐसा कोई गेम होता है क्या? और मैम सांप सीढ़ी में अगर 6 मिलता है तो दोबारा करने का चांस मिलता है. नहीं, वो तो फिर अलग चांस हो गया. मतलब ऐसा कोई गेम होता है क्या जिसमें 2 डाई रोल करनी होती है एक ही बारी में? ऐसा कुछ है नहीं ना. तो बेसिकली क्या हो रहा है ये देखो. एक ये डाई है, एक ये डाई है. एक बार इन दोनों को एक साथ फेंका तो दिस इज 1 थ्रो. फिर इन्हीं दोनों को एक साथ दोबारा फेंका, दिस इज 2nd थ्रो. फिर इसी को तीसरी बार फेंका, दिस इज द 3rd थ्रो.
तो दिस इज अ पेयर ऑफ die, पेयर ऑफ फेयर die. यू आर थ्रोइंग इट 3 times. दिस इज द मीनिंग. ठीक है, ये मतलब है इसका. क्लियर हो गया? यस। ओके जी. ऑल राइट. सो ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है उसका क्लियर यूसेज हम लोग यहाँ पे कर सकते थे. ठीक है. ऑल राइट, फाइन. आर वी ऑल क्लियर विद दिस? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। ठीक है, चले आगे दूसरे क्वेश्चन पे चले. यस। चलो, ओके. So let's do the second one. So take some time, try to read this question, take 1 minute, and tell me what do you think should be done in this. Everybody should read it and tell me what should be done. ठीक है, इसको पढ़ो, देखो और फिर बताओ कि क्या करना है. What is this related to? What kind of a distribution it is? Just check that once. Are we done? क्वेश्चन समझ में आया? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन ओके, सबको समझ आ गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक बार ही समझाते हैं. ठीक है. There is a social scientist who claims that only 50% of all high school graduates who are capable of doing college work actually go to college. ठीक है, तो बेसिकली 50% ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जो कॉलेज का काम करने लायक होते हैं, दे एक्चुअली गो टू कॉलेज. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that among 10 high school graduates who are capable of doing college work, exactly 4 go to college, less than 6 go to college. तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आपके टोटल जो है जितने भी, सो मान लो हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल है, उसमें 100 बच्चे हैं जो कॉलेज का काम करने के केपेबल हैं. ठीक है, मतलब दे आर एलिजिबल टू गो टू द कॉलेज. ठीक है, केपेबल हैं. उसमें से सिर्फ ना 50% लोग ही एक्चुअली कॉलेज जाते हैं, और जो 50% लोग थे जो केपेबल थे कॉलेज के काम करने के लिए, बट दे डोंट गो टू कॉलेज. तो ये क्या, किस चीज के बारे में बात हो रही है? ऑल द पीपल हु आर केपेबल ऑफ डूइंग कॉलेज,
उसमें से who is going to college and who is not going to college. तो only 50% of the people who are actually capable of doing college work will actually end up in a college, and rest of the 50% will not go to the college. ठीक है, ये सिचुएशन है, ये क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब? Yes, ma'am. ठीक है, और इसके बाद इन्होंने Yes. क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that among 10 high school graduate students who are capable of doing college work. तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? 10 हाई स्कूल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो कॉलेज का काम करने के केपेबल है। अब उसमें से वो जो 10 बच्चे हैं ना, उसमें से 4 बच्चे एग्जैक्टली कॉलेज जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। और इस 10 बच्चों में से लेस देन 6 गो टू कॉलेज, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब ये बताओ कि ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल बच्चे हैं, एक हाई स्कूल बच्चे को पिक करना और चेक करना कि ये कॉलेज पहुंचा कि नहीं। सो वी बेसिकली हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑल केपेबल ऑफ डूइंग कॉलेज वर्क। उसमें से एक बच्चा उठाया, चेक किया, अच्छा ये इंसान कॉलेज जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसकी कॉलेज जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉलेज जाना मान लो सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? 50% चांस है कि वो जाएगा, राइट? Yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम गोइंग टू कॉलेज वो कितना हो जाएगा? 50%, Half. 0.5. And Yes. probability of failure या not going to college is 0.5 again. Yes. ठीक है, अच्छा अब आपको क्या निकालना है कि भाई ये जो 10 बच्चे थे, अब आप कोई भी बच्चा उठा उठा के देख लो, सबके कॉलेज जाने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है ना। ऐसा तो नहीं है बच्चा बदल गया तो प्रोबेबिलिटी बदल गई, ऐसा तो नहीं है। सारे ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट है। एक बच्चा कॉलेज चला गया, क्या उससे दूसरा बच्चा कॉलेज जाएगा या नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? No. तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, ट्रायल्स पहले से ही फिक्स्ड है कि हम 10 बच्चों को पिक करेंगे, 10 हाई स्कूल बच्चों को, और फिर उसमें से देखेंगे कि 4 बच्चे कॉलेज जाते हैं कि नहीं। तो ट्रायल्स पहले ही फिक्स्ड है, ट्रायल इंडिपेंडेंट है, ट्रायल में सक्सेस और फेलियर सेम है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? व्हाट काइंड? बाइनोमियल। ठीक है, तो अब बाइनोमियल में आपको क्या बताना है यहाँ पे? व्हाट इज दिस, व्हाट आर दे आस्किंग हियर? P यहाँ पे of x equals to 4. वेरी नाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या होगा? n की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे? p की वैल्यू क्या है? 0.5। n की वैल्यू कितनी है? Ma'am 4. नो। No, ma'am 10. 10, ma'am. हाँ वेरी नाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, ये क्या होगा? टेन सी। 10 C4. फिर 0.5 रेज टू द पावर 4, फिर से 0.5 रेज टू द पावर 6, राइट? Yes. तो ये कितना हो गया? 10C4 0.5 रेज टू द पावर 10, राइट? Yes. ठीक है जी, ये तो हो गई एक चीज। उसके अलावा व्हाट एल्स? ठीक है ना? Ma'am, P of 5. P ऑफ 5 यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? लेस देन 6 पीपल गो टू कॉलेज। लेस देन 6 गो टू कॉलेज का क्या मतलब है कि मेरे को क्या निकालना? Ma'am, P x then x less than 6. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Yes. राइट? तो ये एक्चुअली क्या हो गया? क्या मैं इसको कैपिटल बी, ठीक है, 5, 10, 0.5 ऐसे लिख सकती हूँ?
दिस इज माई CDF ओनली, राइट? यस। ये मेरा CDF है। तो बाइनोमियल का CDF कैसे लिखते हैं? आप यहाँ पे अपने x की वैल्यू लिखो, फिर अपनी n की वैल्यू लिखो, फिर p की वैल्यू लिखो, राइट? यस। So did I tell you guys how to look at this table? x की वैल्यू 5, n की वैल्यू 10 और p की वैल्यू 0.5। क्या आप मुझे ये नंबर बता सकते हो कि ये क्या होगा टेबल में? चलो बताओ फिर क्या होगा टेबल में, चेक करो। Do you guys all have the table? I will reshare it in case. I will reshare it. So जो आपकी पहली टेबल है ना, फर्स्ट टेबल, उसमें चेक करो, n वैल्यू 10, p वैल्यू 0.5 और x वैल्यू 5। क्या आंसर आ रहा है? n वैल्यू 10, p वैल्यू 0.5 and x वैल्यू 5। मैम 0.623। वेरी नाइस, 0.623। ठीक है, तो n वैल्यू 10 वाली टेबल देखनी है, वहां पे p नंबर 0.5 देखना है, वहां पे x वैल्यू 5 देखनी है। ठीक है, सबका यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। कैन यू ऑल्सो टेल मी व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? ये क्या होगा? इसको भी टेबल का यूज करके निकाल सकते हैं क्या? क्या करेंगे? b ऑफ 4, 10, 0.5 में से b ऑफ 3, 10, 0.5 अगर माइनस कर दे तो आ जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू 4 ओनली। यस और नो? राइट? यस मैम। क्योंकि ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो सिर्फ x इक्वल्स टू 4 की प्रोबेबिलिटी बचेगी। तो ये दोनों नंबर्स क्या आएंगे टेबल में से? सेम टेबल देखना है जब x की वैल्यू 4 हो और जब x की वैल्यू 3 हो, राइट? तो 0.377 माइनस 0.172, राइट? ये जो भी डिफरेंस है वही आपका आंसर होगा। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, भरत, प्रियांक, गाइस, दिस इज क्लियर? चलो, ओके, गुड, ऑलराइट। So this is done, clear? Can we do this? Anything like this if comes up, we'll be able to do it. यस। Chalo, यस मैम। okay, perfect, very nice. Let's do this one now. पहले तो आप बताना कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और क्या होगा और क्या करेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 3। Try to read it, take your time, take 1 minute, 2 minute, whatever you want to take, and just think about it, what kind of distribution is it? ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जरा सोच के बताओ।
तो मैम कंसाइनमेंट का क्या मीनिंग है? कंसाइनमेंट मतलब कि जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी और को काम दिया, तो काम देने को आप ऐसे बोल सकते हो कि वी हैव अ कंसाइनमेंट फॉर यू, जिसमें आपको हमें 7 रेफ्रिजरेटर डिलीवर करने हैं। कंसाइनमेंट मतलब अ वर्क, ओके। प्रोजेक्ट। ठीक है। द एग्जैक्ट कंसाइनमेंट, a batch of goods which is destined or for or delivered to someone, कोई एक पैकेज किसी को डिलीवर करना हो। हम्म तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बस लिख देती हूँ जो जो लिखा हुआ, मैं कुछ बताऊंगी नहीं। 7 रेफ्रिजरेटर सेट्स हैं, 7 रेफ्रिजरेटर हैं, जिसमें से 5 में कोई स्क्रैच नहीं है, नो स्क्रैच। ठीक है। और 2 में फिर स्क्रैच होगा मतलब। ठीक है। और एक होटल ने क्या किया, एक रैंडम परचेज की ऑफ 3 ऑफ सच सेट, 3 रेफ्रिजरेटर उन्होंने खरीदे। और अब ये पूछ रहे हैं एक्स क्या है, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विद अ स्क्रैच। ठीक है। अब आपको ये जो एक्स है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, फिर इसका सीडीएफ बताना है, फिर सीडीएफ का ग्राफ बनाना है, फिर सीडीएफ का यूज करके ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, बाइनोमियल, राइट। कि नहीं, नहीं है बाइनोमियल। इट इज हाइपरजोमेट्रिक। वेरी नाइस। व्हाई इज इट हाइपरजोमेट्रिक? क्योंकि सारी चीजें देखो ना, आपकी पॉपुलेशन साइज क्या है, 7। अब आप यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो जिसका नाम क्या है कि भाई नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर विद अ स्क्रैच। तो मान लो स्क्रैच आना सक्सेस है, अगर स्क्रैच आना सक्सेस है तो कितनी सक्सेस हो गई आपके पॉपुलेशन में, 2। और ये फेलियर हो गया। और आपको सैंपल साइज क्या पिक करना है, 3। तो ये 7 रेफ्रिजरेटर में से आप कोई भी 3 पिक करोगे और फिर बताओगे कि अच्छा भाई कितने रेफ्रिजरेटर में स्क्रैच आया, उस वो एक रैंडम वेरिएबल है आपका, राइट। नंबर ऑफ सक्सेस इन योर सैंपल ऑफ साइज 3, हाउ मेनी सक्सेस डिड यू गेट? सो व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट, हाइपरजोमेट्रिक कि नहीं? तो मेरे तीनों पैरामीटर्स आ गए ना यहाँ पे, देखो एन की वैल्यू 7, कैपिटल एम की वैल्यू 2, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी, 3, एक्स क्या, नंबर ऑफ सक्सेस इन n equals to 3, right? Yes or no? यस मैम। ठीक है। तो फिर अब क्या करें, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो इसमें x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये बताओ।
x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? क्या मेरे पास एक भी फ्रिज में स्क्रैच ना हो, ऐसा हो सकता है? नो नहीं हो सकता। हम अगर मेरे 5 नो स्क्रैच वाले रेफ्रिजरेटर में से 3 आ गए तो मेरे पास कोई स्क्रैच नहीं होगा, राइट? यूज दिस, you remember that minimum of n comma m and maximum of 0 comma n minus m। जरा चेक करके बताओ क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आएंगी। n क्या है मेरा 3, m क्या है 2, यहाँ पे 0 कॉमा मेरा n कितना है 3, मेरे फेलियर्स कितने हैं 5, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, राइट? यस और नो? मैक्सिमम ऑफ 0 और -2 क्या होगा? जीरो 0। और मिनिमम ऑफ 3 2 कितना होता है 2 2। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं 0 1 एंड 2। 3 तो मेरे पास स्क्रैच है ही नहीं, 3 स्क्रैच वाला रेफ्रिजरेटर, 3 तो है ही नहीं स्क्रैचेस कि तीनों रेफ्रिजरेटर में स्क्रैच आए, राइट? तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ गई आपके पास 0 1 एंड 2। तो अब आपको इसकी बस प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बताओगे? हाउ विल यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी? ये बता दो, और ये बता दो, और ये बता दो। अगर ये तीनों चीजें बता दी तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यस और नो, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाउ विल यू फाइंड दिस? जीरो का मतलब क्या है? मेरे पास कोई भी स्क्रैच वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बिना स्क्रैच की चीजें 5 हैं। 5 में से क्या चाहिए? 5 में से मुझे कितनी चीजें नॉन स्क्रैच वाली चाहिए, नो नो स्क्रैच वाली चाहिए? 5C3, राइट? है ना? यस मैम नथिंग फ्रॉम स्क्रैच डिवाइडेड बाय 7C3, right? Is that okay? यस Okay, 1 के लिए क्या होगा कि एक स्क्रैच वाला होना चाहिए, बाकी नॉन स्क्रैच। एक स्क्रैच वाला मतलब 2 में से कोई भी एक स्क्रैच, बाकी 5 में से कोई भी एक स्क्रैच, 2 स्क्रैच, राइट? 2 नॉन स्क्रैच टाइम्स 7 में से कोई भी 3, राइट? यस मैम और 2 का क्या हो जाएगा? 2 में से दोनों स्क्रैच वाले आ जाओ, और 5 में से कोई भी एक ले आओ, और 7C3 कर लो, राइट? यही हो गई मेरी वैल्यूज। यस मैम ठीक है, अब इसके नंबर्स निकाल लो, क्योंकि आगे जाके ना हमें बहुत सारी चीजें करनी है। तो इनके नंबर्स क्या हो जाएंगे? 5C3 कितना होता है? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट? यस और नो? यस मैम और 7C3 कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड देन 3 इंटू 4 इंटू, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1,
right? This is what you have. ये चीज क्लियर है कैसे किया है? यस मैम। क्योंकि ये क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल। अब ये जो 4 फैक्टोरियल है ये 4 तक मल्टीप्लाइड होगा, तो वो 4 हमने इसमें से रिमूव कर दिए, तो सिर्फ ये बच गया और नीचे 3 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से ये किया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है आप देखो जरा, 5 5 6 and 2, so this is 2 by 7, right? Now what is this? 2 times 5 times 4 divided by 2 times 7 into 6 into 5 into 6। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 6 6 5 5, this is 4 by 7। If one is 2 by 7, one is 4 by 7, what is the rest of it? ये कितना हो जाएगा, 1 by 7, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 1, यस मैम। है ना? तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो मेरी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो गई, 2 by 7, 4 by 7 एंड 1 by 7, ठीक है। तो अब सिंपल हो गया है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑल गुड, यस। ठीक है। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब आपको सीडीएफ बनाना है, तो सीडीएफ कैसे बनाओगे, हाउ विल यू फाइंड सीडीएफ, कैसे बनेगा सीडीएफ? सीडीएफ यू हैव टू ड्रॉ, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू मान लो लेस देन और इक्वल टू 1 रही, चलो लेस देन इक्वल टू 1 रही, ऐसे मत करो, लेस देन 0 रही, तो क्या आंसर आएगा आपका? ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी मेरे पास, राइट? कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 में तो कोई नंबर नहीं आया, तो वहां पे मेरी ये सीडीएफ वैल्यू 0 हो जाएगी। यस, यस मैम। अच्छा, जब भी एक्स की वैल्यू 0 या 1 से 1 के बीच में होगी, 1 नॉट इंक्लूडेड, तो मेरा कौन कौन सा इंटीजर इंक्लूडेड रहेगा, ओनली 0? यस मैम। जीरो पे ओनली जीरो। और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7, तो दिस इज 2/7, ठीक है। जब भी आपकी एक्स वैल्यू 1 इंक्लूड करके या 2 से लेस देन होगी, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज में कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज वैलिड होंगे? ओनली वन। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लो 1.5 है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.5। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 1 एंड 0, यस मैम। है ना? तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी को और इस दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, राइट? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिमेंबर, इस नंबर के नीचे के सारे वैल्यूज ऐड कर दो, राइट? तो दिस इज 4/7 प्लस 2/7 विच इज 6/7, यस और नो? यस। और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 या 2 से बड़ी में सारे वैल्यूज आ गए, 2 भी आ गया, 0 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, राइट? तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1, वन। है ना? तो ये क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सीडीएफ, इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद का क्या टास्क है, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फॉर दिस। इसका ग्राफ बनाना है, सीडीएफ का ग्राफ बनाना है, एंड यूजिंग द सीडीएफ फाइंड दिस। तो पहले तो यही बता दो ये क्या है, सीडीएफ का यूज करके ये बता दो कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 या 2 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकालने को बोल रहे हैं ये,
मैम x और इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस p x इज इक्वल टू 0। सॉरी सॉरी फिर बताओ। मैम p x इज इक्वल टू 2 माइनस p x इज इक्वल टू 0। पी क्या यस है? मैम। व्हाट इज पी हियर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? पी की एफ, कैपिटल एफ लिखूं कि पी लिखूं? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 का तो ये मतलब हो गया कि ठीक है मेरा रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू ले रहा है, राइट? यस। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? f एफ से क्या पता चलेगा कि भाई एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, माइनस 0 या 0 से छोटा, सब कुछ एक्सक्लूड कर देंगे, तभी तो ये वाली वैल्यू बचेगी ना। यस और नो? यस यस तो ये कितना है? 2 या 2 से 2 जब इंक्लूडेड है तो ये वैल्यू 1 है। यस और फिर 0 पे क्या थी वैल्यू? 2/7। यस तो ये 1 माइनस 2/7 हो जाएगा, विच इज हाउ यस मच? 5/7। यस। इज दैट ओके? या फिर आप इसको वैसे चेक करना चाहो तो वैसे देख लो, इसके अंदर क्या क्या इंटीजर्स होंगे? एक्स की वैल्यू 1 एंड 2 ओनली, 0 तो इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 और 2 की वैल्यू ऐड कर दो। 1 और 2 की वैल्यू क्या होती? 4/7 एंड 1/7, विच इज 5/7, राइट? क्लियर है? ठीक है, चलो। अब एक जो बीच वाला स्टेप हमने छोड़ दिया था वो क्या था? इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ जरा। डू यू रिमेम्बर हमने पहले एक ग्राफ बनाया था सीडीएफ का? तो यहाँ पे आप अपनी एक्स वैल्यूज डिनोट कर दो। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 एंड बेसिकली दैट्स इट। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं ये क्या क्या हो गए? 0, ठीक है, ये क्या हो गया? 2/7 मान लो, ये क्या हो गया? 6/7, और ये मान लो 1 है। ठीक है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो अब 0 या 0 से छोटे में, 0 से छोटे में ये वैल्यू 0 लेता है, राइट? 0 से छोटे में ये वैल्यू 0 लेता है। तो हाँ जी, तो 0 से छोटा जब कुछ भी होता है तो वो ये वैल्यू लेता है, 0। यहाँ पे ये ओपन रखेंगे क्योंकि 0 पे ये वैल्यू नहीं है। 0 पे क्या वैल्यू लेता है ये? 2/7। तो यहाँ पे आप एक क्लोज्ड सर्कल बनाओगे 2/7 से लेके यहाँ पे 1 तक। 1 पे ये वैल्यू नहीं लेता, इसलिए 1 पे आप एक सर्कल ओपन रखोगे। 1 पे ये वैल्यू क्या लेता है? 6/7। तो 6/7 से लेके ये यहाँ तक। 2 पे ये 6/7 वैल्यू नहीं लेता, इसलिए इसको ओपन रखेंगे। फिर 2 पे ये क्या वैल्यू लेता है? 1। So this is what we have, and we can keep doing it like this. This is how we draw it. Yes. Is that clear? ओपन सर्कल मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज सर्कल मतलब, ओपन सर्कल का मतलब है 2 पे ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। ओपन सर्कल का मतलब है 1 पे ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इज दैट ऑल राइट? आर वी क्लियर विद दैट? यस यस मैम। वेरी नाइस, ओके।
So these were some of the questions which were related to hypergeometric and your binomial. ठीक है, अभी क्या है, what all is left from this is just, you know, आपको negative binomial distribution नहीं करना है, so no need to do and worry about that. Hypergeometric we have done, binomial we have done. We have to do the Poisson distribution, which is basically the last thing which is left. So what we will do now means in the next class will be Poisson distribution. So Poisson distribution करेंगे एक चीज, और जो भी आपके doubts हैं रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड या उसके पहले से रिलेटेड, वो हम लोग ले लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं. ठीक है, सो वट एवर आवर नेक्स्ट लेक्चर इज विच विल बी ऑन ट्यूसडे, वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर 3, और फिर थर्सडे से हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो थर्सडे से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका वीकेंड है उसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर लो. तो डाउट सेशन प्लस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसको कवर करेंगे. एंड उसके अलावा ओके, जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग विच इज टुमारो आई प्लान टू कीप अ मेकअप क्लास फॉर द मैथ्स वन, जो हमारी मंडे को मिस हुई थी. सो कैन वी डू 9 PM to 10:30 because I have classes before that. Can we do that? 9 PM to 10:30? Yes, ma'am. So 9 to 10:30 works for you? ठीक है. Anybody having any issues with that? Okay, it's fine. Cool. Sure. So class हम लोग जो है 9 to 10:30 रखेंगे. और या ठीक है. So हमारा चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोगों को करने हैं, वो हम लोग कर लेंगे. और फिर जो नेक्स्ट मंडे से क्लास होगी उसमें फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन. चैप्टर 5 कमिंग वीक से चैप्टर 5 in mathematics and chapter 4 in statistics we will start. Okay, all right. Okay guys, I think let's stop here for today, and I'll see you tomorrow for the maths class. Thank you. Take care. Thank you.